First, in demo class, we have small topic that is attendance management in Excel. How to make the attendance sheet, right? I'm just giving you the overview. It will be little fast because I have time limit of 30 minutes only. तो जितना है उतना मैं कवर करूंगा, आपसे बताऊंगा कि how you will generate this, है ना? And if time limits, I will take the another topic. See, I have employee database, employee ID आगे पीछे कहीं पे भी हो सकते हैं, employee ID यहाँ पे भी हो सकते हैं. It's completely fine. Department designation, employee status, and if you want to add more information, you can. Date of joining and all. And here I have employee attendance फर्स्ट से लेके 30 या 31 जो भी डेट है उस तक आई हैव अटेंडेंस. एंड आई हैव प्रेजेंट एब्सेंट डिटेल्स. एंड आई वांट टू काउंट टोटल वर्किंग डेज प्लस I want to count the present absent plus percentage also. And here I have small information that present ko I will write down the P, absent ko I will write down A, paid leave ko I will write down PL, scheduled leave ko CL. That I am giving you the shortcut, that keys or shortcuts you can say. Now, अगर मुझे यहाँ पे फॉर द फर्स्ट डे इफ आई वांट टू राइट डाउन दी एम्प्लॉय अटेंडेंस, आज इनका प्रेजेंट था, आज इनका एब्सेंट था, this person has taken the paid leave, it will take lots of your time, right? So in Excel you can generate the drop down list. It is so simple, right? Excel formula में भी आएगा and attendance and leave management में भी आएगा. How to create the drop down list in Excel? So first come to this point where you have mentioned the shortcut of particular database. Select the database, right? Click on data tab, click on this data validation, first option data validation. Okay, click on setting, यहाँ पे select the list and in this select the your whole shortcut, right? इतना कर लो and okay. So here you can find drop down list. ठीक है, यहाँ पे आपका वो आ गया. Now if you want to apply this database into whole attendance sheet, select the whole data again of your employees, जितना भी है अभी जस्ट डेमो के लिए तो इतना कर लिया. Again same, come to the data tab, come to the data validation पे आओ, यहाँ पर click on data validation, first setting में click on list and यहाँ पे जो source है उसमें यहाँ पे जाकर select all this again and okay. Now you can check कि जहाँ जहाँ पे आपने select किया था वहाँ पे you can find out the drop down list. See, so simple, easy. Now अपन ऐसा करेंगे कि अटेंडेंस मैनेज कर रहे तो पूरे महीने का अटेंडेंस पहले बना लेते, राइट? प्रेजेंट कर दिए सबके, यहाँ पे एक वीक ऑफ कर लेते 7 तारीख को, देन 14 को वीक ऑफ कर लेते हैं, देन 21 को कर लेते हैं, 28 को कर लेते हैं. देयर आर 4 वीक ऑफ इन पर्टिकुलर मंथ. नाउ सपोज आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ पर्टिकुलर डेटाबेस, जैसे प्रेजेंट का पी है उसका कलर चेंज हो जाए, या वीक ऑफ का डब्ल्यू है उसका कलर चेंज हो जाए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग definitely we can do. How to do? Select your whole database again, click on home tab, click on conditional formatting, highlight the cell rules and equal to पे यहाँ पे कर दो. न्यू रूल भी बना सकते हैं बट एज ऑफ नाउ सिंपल रखते हैं, इक्वल टू पे क्लिक कर. इक्वल टू व्हाट? तो प्रेजेंट का जो पी है वो कलर चेंज करना है, यहाँ से क्लिक ऑन कस्टम फॉर्मेट एंड फील्ड में जाकर यहाँ पे कलर कौन सा रखना है फॉर दी प्रेजेंट. सपोज प्रेजेंट का कलर रखना है मुझे ऑरेंज और यू कैन से ब्लू रखना है, डार्क ब्लू भी कर सकते हैं जैसे आप लोग. ओके एंड डन. सी चेंज. अभी जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट में लिखूंगा तो भी इट विल गिव यू दी ब्लू कलर ओनली. सिंपल. वन मोर टाइम, सिलेक्ट द डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू, जैसे वीक ऑफ का चेंज करना है तो WO, कस्टम फॉर्मेट में जाकर क्या कलर करना है, सपोज उसका कलर ऐसा कुछ कर लेना है आपको. ओके, अच्छा नहीं लग रहा ना कलर, लाइट दिख रहा है तो और कलर कर लेते हैं हम लोग, येलो कर लेते हैं. सी डन. जहाँ तक सिलेक्ट किया था वहाँ सब जगह कलर आ गए. नाउ यहाँ पे कहीं जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे आई विल चेंज द WO वीक ऑफ, कलर चेंज हो जाएगा. इजी.
सो सिंपल. एंड लास्ट इन द एक्सेल कि अगर आई इफ आई वांट टू काउंट द प्रेजेंट ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉई फॉर द होल मंथ, आई विल यूज द काउंट इफ फॉर्मूला. इज इक्वल टू काउंट इफ, select the whole month attendance of the particular employee, then comma. What you want to find out? I want to count the present. Present है ना, उसका शॉर्ट कोड है P. इन्वर्टेड कोमा में P, कैपिटल स्मॉल चलेगा, इन्वर्टेड कोमा कंप्लीट एंड क्लोज द ब्रैकेट. कैन फाइंड आउट द प्रेजेंट डेटाबेस. ड्रैग कर लो. ठीक है, देख लो 26 26 27. यहाँ पे वीक ऑफ नहीं है तो 27 हो गया. अब यहाँ पे कुछ चेंज करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो चेंज हो जाएगा. सी इजी. ऐसे सबका काउंट कर सकते, प्रेजेंट एब्सेंट वीक ऑफ सबका. परसेंटेज निकालने हो, इफ यू वांट टू काउंट द परसेंटेज ऑफ होल मंथ, तो क्या करेंगे? हमने मैथ्स में सीखा था बचपन में कि अगर 10 एम्प्लॉय है तो 100% डेटाबेस है, तो 5 एम्प्लॉय तो कितना? तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला होगा. इज इक्वल टू 27 डेज का है तो 100%, सॉरी 30 डेज का है तो 100% है. 27 डेज पे कितना? तो 27 इंटू 100 डिवाइड बाई 30 और 31. इट विल गिव द परसेंटेज. ठीक है. एब्सेंट का निकालना हो तो इज इक्वल टू, एब्सेंट तो अभी कोई है नहीं, इंटू 100 डिवाइड बाई 30. अब यहाँ पे कुछ एब्सेंट कर ले हम लोग, डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा. इज इक्वल टू काउंट इफ, सॉरी, इज इक्वल टू काउंट इफ, select the whole month attendance of particular employee, कोमा, इन्वर्ट कोमा में ए एंड क्लोज द ब्रैकेट. यहाँ पे जितने भी एब्सेंट है वो काउंट हो जाएंगे आपके. नाउ वहाँ पे जो प्रेजेंट परसेंटेज थे, एब्सेंट परसेंटेज यहाँ पे आ गए. आई नो लिटिल बिट फास्ट है बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि कैसे हम लोग काउंट करेंगे. और इसको चार्ट के रूप में आपको प्रेजेंट करना हो तो सिलेक्ट द डेटा ऑफ एम्प्लॉई, क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन रिकमेंडेड चार्ट. ठीक है. तो ऐसे कोई भी चार्ट के रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं. राइट. प्रेजेंट एब्सेंट कितना है, डे वाइज यहाँ पे डेटा आपको मिलता जाए. कितने दिन का रखना है यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं. So that is about attendance management. In looking forward to register the individual. That means how to generate the UN number of employee. तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. जस्ट मिनट, कोई ज्वाइन हुआ है रोहित ना. See, this is form number 5 under the EPF, right? In that case, they will ask in offline mode. Otherwise, it is online process. If employee is fresher and he or she is not having the UN number, right? So in that case, click on no. यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे. आधार कार्ड नंबर, सॉरी आधार कार्ड के हिसाब से नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, मेल फीमेल, यहाँ पे फादर हस्बैंड नेम, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन. ईपीएफ पेजेस, दैट इज ईपीएफ क्रॉस, राइट. एंड देन यहाँ पे आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेना है. कंफर्म करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा डेटा एंड देन यू टू वेरीफाई विद द डीएससी. दिस इज फॉर्म नंबर 5 अंडर द ईपीएफ, दैट इज ज्वाइनिंग प्रोसेस. And in case employee is experienced and he or she is already having the UN number, तो click on yes. क्लिक करेंगे, enter 4 details as required, वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे नीचे डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेटा आ जाएगा एंड देन डीएससी से कंफर्म कर लेंगे. तो फ्रेशर है तो नो, एक्सपीरियंस है तो यस. एंड कोई आउट कंट्री का एम्प्लॉई है तो उसका यहाँ पे पासपोर्ट से आपको करना पड़ेगा. ठीक है. सेम
There are many options here. Missing details, approve missing details, KYC pending and everything. Establishment में DSC रजिस्टर करना हो तो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. DSC आपने जहाँ से परचेस किया होगा उसका डेटा यहाँ पे एंटर करना है. फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड करना है 2 बार साइन करके. And when you join the class ना, I will give you the explanation. अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप पढ़ोगे. Form 5A, if you want to change any details of particular company, want to add the director, want to remove the director, if you want to add account details of the company, right? यहाँ पे payment के हैं. If you want to change the mobile number, email ID of the company, in that case, you will come to this particular Form 5A that modify establishment details में जाके कर सकते हैं. फिर इसका कॉपी ऑफलाइन में 30 डेज में देना, यहाँ से डाउनलोड करके ऊपर जो है वहाँ से जो चेंजेस कर रहे हो अपने लेटर पे लिख के देना है विद द रिक्वायर्ड प्रूफ. ठीक है. इंस्पेक्शन नोटिस, इफ एनी नोटिस फ्रॉम दी PF डिपार्टमेंट देन वो यहाँ पे आएगा. पेमेंट्स में PCL पे जाएंगे, एवरी मंथ चालान अपलोड करना है. एंड चालान कैसे पेमेंट करना है उससे पहले PCL फाइल यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है. वेज मंथ सेलेक्ट करना है, सैलरी पहले होनी चाहिए, उसके बाद चालान पेमेंट करना है. फाइल सेलेक्ट करना है, नोटपैड होगा ECR एंड 12% करके अपलोड कर देना है. एंड देन नीचे आ जाएगा उसका पेमेंट कर देना. ठीक है. एवरी मंथ ECR जो है इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न बिफोर 15th वी हैव टू सबमिट इट. एंड अगर 15th आपका सैटरडे संडे फॉलो हो रहा है तो ट्राई टू कंप्लीट बिफोर 14th, उससे पहले कंप्लीट कर लो. ठीक है. तो देयर आर मैनी ऑप्शंस, वन बाय वन हम लोग देखेंगे. किसी के ट्रांसफर क्लेम्स आए हुए, पुराना PF नए में, तो यहाँ पे आ जाएगा.